अच्छा स्टार्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we will be discussing the lacrimal system of the eye, and in lacrimal system, in the coming Monday, on the coming Monday, inshallah Taala, lecture of fourth year will be on lacrimal system. And today in eye clinic, we will discuss a little bit of theory of lacrimal system, and main our concern will be on the clinical examination for the of the lacrimal system. So first of all, whenever you studies any subject, you must understand its anatomy. If you don't know the anatomy, then you can't move forward. So I hope the diagram of the lacrimal system, right from the lacrimal punctum, आवाज आ रही है? डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्टर्स हैं, जो ये नॉइजेज आ रही हैं, ये आ रही हैं. अब वी हैव टू मूव विद दिस थिंग. अब हम क्या करें, मजबूरी है हमारे पास, लेकिन हम अगर कंसंट्रेट करें तो यू विल गेट द. अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ. ये देखिए, अब ये लोअर आईलिड है, लोअर आईलिड है, ठीक है, और ये अपर आईलिड है, ये आँख, और ये राइट आई है. समझ आ रही है? इधर नाक है. तो ये जो राइट आई का ये वाला पार्ट है ना, इसको इनर कैंथस बोलते हैं. दिस वन इनर कैंथस. ये मैं चूँकि यहाँ पर मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड नहीं है, तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ माई हैंड्स टू लेट यू अंडरस्टैंड द एनाटमी फर्स्ट. दिस इज द इनर कैंथस. इसके ये समझ नहीं आई है, अपर आईलिड, लोअर आईलिड. ओके, जहाँ पर समझ ना आए, स्टॉप भी देयर एंड देन. यहाँ पर एक सुराख होता है, एक सुराख नीचे अपर आईलिड में होता है, मीडियल साइड पे. इसको बोलते हैं पंक्टम, ठीक है. इसके बाद एक 2 मिलीमीटर वर्टिकल कैनालिकुलस होता है, एक 2 मिलीमीटर नीचे कैनालिकुलस होता है, फिर एक 8 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल कैनालिकुलस होता है, और एक 8 मिलीमीटर इधर नीचे हॉरिजॉन्टल कैनालिकुलस होता है. तो पंक्टम, वर्टिकल कैनालिकुलस ऑफ 2 मिलीमीटर and horizontal canaliculus of 8 millimeter. Canaliculus mean a canal. तो ये दोनों मिल के यहाँ पर ये जो है इधर मिल जाते हैं, और इसको कहते हैं कॉमन कैनालिकुलस. समझ आ रही है? और ये कॉमन कैनालिकुलस नीचे आकर ये जो आपको मेरा हाथ का ऐसा नज़र आ रहा है, ये यू कैन से इट इज lacrimal sac. It opens into the lacrimal sac. The tears right from the punctum go into the canaliculus. Are you getting me, everyone? Into the canaliculi, then into the common canaliculus, from the common canaliculus into the lacrimal sac, and from the lacrimal sac, this is the nasolacrimal duct, which opens in the nose below the medial terminate. Below the medial terminate. समझ आ गई? तो इस तरह जो आपके टीयर्स है, ये उसके ड्रेनेज सिस्टम है. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? यू हैव गॉट द लैक्रिमल attentive हो जाए प्लीज. द excretory part is that you have got a lacrimal gland which is present in the supratemporal fossa, and it secretes the tears. It is like this is the gland and these are its ducts, and it is continuously secreting the tears.
and they are drained in the way I told you. Till now you are with me. You're getting my point, and everyone is clear. I hope. Now, in I, first of all, I will explain a little bit of theory. Three things are three diseases are very important. One is congenital nasolacrimal duct obstruction. ठीक है, उसमें क्या होता है? congenital nasolacrimal duct obstruction का मतलब ये है कि when the baby is born, the mother comes with a complaint that since the baby is born, the eye is watery. तो ये nasolacrimal duct कौन सी है, ये बंद होती है. एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसका ट्रीटमेंट भी ज़्यादा बता देते हो आपको. और अगर ये इन्फेक्टिव हो जाए तो हम उसको फिर एंटीबायोटिक देते हैं. In a child even of the one day, the most safe antibiotic is tobramycin group. ठीक है, तो आप tobramycin दे सकते हैं अगर इन्फेक्टेड है. अदरवाइज आप पेशेंट से क्या कहेंगे कि मसाज करें. अच्छा, अब मैंने आपको जो एनाटॉमी बताई थी वो आपके जहन में है ना. तो इधर लैक्रिमल पंक्टम है, इधर पंक्टम है, इधर कैनालिकुलर है, इधर कैनालिकुलस है, ये मिड कॉमन कैनालिकुलस है. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या होगा, लैक्रिमल सैक और ये अंदर लैक्रिमल डक्ट. तो 2 millimeter below the lacrimal 2 millimeter below the medial canthus. 2 millimeter the medial canthus. When I place the index finger, it is right above the lacrimal sac. ठीक है. तो आपने पेशेंट की मदर को कहना है कि यहाँ पर उंगली रखें और इस तरह थोड़ा सा दबाएं और इस तरह नीचे लेके आए, फिर इस तरह रखें, फिर इस तरह नीचे लेके आए. यानी कि 15 strokes 3 times a day. What will happen? The nasolacrimal duct, which should be like this, it is blocked and it is somewhat like this. Some adhesions are formed. By doing this massage, which we call hydrostatic massage. These adhesions are broken and the duct becomes open. And it is opened in the first few months. And if it is not done properly, then after 9 months or 10 months, it is permanently blocked. Then we have to go for surgical intervention. I will not go in the details of the surgical interventions. So, this is one of the important causes. How this massage is performed, I will demonstrate it also. After taking the consent, as we take in all examination, you will perform. लेकिन बच्चे उससे आपकी माँ ने क्या कंसेंट लेना है, आपने करना इस तरह कि कर लें आपको. ये यानी कि ये मैंने यहाँ पर उंगली रखी, ये अज्यूम करें कि ही इज़ अ 2 months बेबी, और इसकी ये आँख जो सी है, इसमें से मसल से पानी आ रहा है जब से पैदा हुआ है. तो इधर रखा उंगली और इधर से ये हाथ नीचे रखा है स्टेबल करने के लिए. इधर से ये इस तरह किया, फिर ऊपर किया, फिर इस तरह किया, फिर इस तरह किया, फिर इस तरह किया. अब मदर है ना, वो डर के मारे बहुत हल्का हल्का करती है. उनसे कहना बहुत हल्का भी नहीं करना, बहुत ज़ोर से भी नहीं करना, इतना करें कि वो एडिशंस टूट जाए. सुबह दोपहर शाम कर लें 15-15 दफ़ा, 20-20 दफ़ा. और अगर इन्फेक्शन है तो साथ एंटीबायोटिक दें. क्लियर हो गया. तो ये परमानेंट कब तक हो जाता है? अगर ठीक ना हो, ये 2-3 महीने में ठीक हो. अगर ठीक ना हो तो परमानेंट कब तक हो जाता है? ये 9 month 10 month के बाद परमानेंट ब्लॉक हो जाता है. उसके बाद the second disease which can occur is acute dactylocystitis. Acute dactylocystitis का मतलब है acute infection of the lacrimal sac. सर कंडीशन का नाम दोबारा बता दें. है कंडीशन का नाम दोबारा. किसका? कंडीशन जो भी आप acute dactylocystitis. Not it is the
acute infection of the lacrimal sac, not the lacrimal gland. lacrimal gland की infection को बोलते हैं एडिनाइटिस, ठीक है। ये सिस्टाइटिस है। एक्यूट डेक्टिवल सिस्टाइटिस में पेशेंट आएगा आपके पास, लैक्रिमल सैक की जगह जो यहाँ पर है, ये इधर स्वेलिंग हुई होगी, रेड हुआ होगा, टेंडर होगी, पेनफुल होगा, ही विल बी इन पेन, एंड द ट्रीटमेंट इज सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, सिस्टेमिक एनाल्जेसिक्स, टॉपिकल आई ड्रॉप्स एंड हॉट फर्मेंटेशन, गर्म टकोर, and send the patient to home. When he comes back, 95% of the patients convert the infection will be resolved, but the complication is that 95% of the people will convert into chronic dactylocystitis. Only 5% people will have the patent lacrimal system. So इसमें तो ट्रीटमेंट यही आते हैं। अब आखिरी है क्रोनिक डैक्टिलोसिस्टाइटिस। क्रोनिक डैक्टिलोसिस्टाइटिस में फॉलो द एक्यूट डैक्टिलोसिस्टाइटिस एज आई जस्ट टोल्ड यू, और इट में अकर इंसिडीज खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉकेज हो गई और वो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट आमतौर पर उसकी ब्लॉक हो जाती है, ओल्ड एज में रिलेटिवली होती है, ठीक है। तो उसमें पेशेंट आपके पास आता है परसिस्टेंट वाटरी आई के साथ, आंख से हर वक्त पानी आता रहता है और साफ पानी आता है। ऑफ एंड ऑन कभी इन्फेक्टिव हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है तो पसी डिस्चार्ज हो जाता है, अदरवाइज वाटरी डिस्चार्ज होता है। तो इसमें इस स्टेज के ऊपर हमारे पास सिर्फ एक प्रोसीजर है उसको ठीक करने का, वो ये है कि हम सर्जिकल इंटरवेंशन करें। नो मेडिसिन विल वर्क एंड द सर्जिकल इंटरवेंशन इज कॉल्ड डेक्रियोसिस्टोरिनोस्टमी। फोर्थ ईयर ख़ास तौर पे आप लोग और थर्ड ईयर भी, डेक्रियोसिस्टोरिनोस्टमी, इसको DCR भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर इंसिजन देते हैं जनरल एनेस्थीसिया में 2 मिलीमीटर बिलो द इनर कैंथस, सेपरेट करते हैं ऑर्बिकुलरिस मसल को, ये नेज़ल बोन को देखते हैं और उसको काटते हैं और उसकी सैक जोन सी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डैक्टिलोसिस्टाइटिस, ये आप लिख लें, ये प्रिंसिपल आपको आना चाहिए। वी मेक एन एनास्टोमोसिस। द बेसिक पैथोलॉजी इन chronic dactylocystitis is usually the nasolacrimal duct obstruction, but not congenital in this case. So we bypass the nasolacrimal duct by making an anastomosis between lacrimal sac between the lacrimal sac and nasal mucosa। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये है आपकी सैक, आपने आइडेंटिफाई कर ली यहाँ से काट के, उसके बाद आपने इस सैक पे एच शेप इंसिजन देना है, यानी कि एक लाइन यहाँ दी, एक यहाँ पर दी, एक ये दी, ठीक है। ये एक अपर फ्लैप बन गया, एक नीचे वाला फ्लैप बन गया। ये क्या है, नोज़, ठीक है। जब आपने नेज़ल बोन काटी होगी तो इधर आपको क्या नज़र आएगा, नेज़ल म्यूकोसा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर भी आप एच शेप इंसिजन देंगे, ये बहुत ब्लीडिंग यहाँ से हो सकती है, इट्स वेरी वेस्कुलर टिश्यू। एच शेप इंसिजन देंगे और इधर भी अपर और लोअर फ्लैप बन जाएगा। आप अपर नेज़ोलैक्रिमल म्यूकोसा के अपर फ्लैप को लैक्रिमल सैक के अपर फ्लैप को और लोअर फ्लैप को लोअर फ्लैप से जोड़ देंगे। दिस इज how now the tears will through the nasolacrimal sac will go into the nasal mucosa by bypassing the nasolacrimal duct.
Understood? In recently,